to our favorite topic and very, 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 very important topic. Like this is very hot topic, guys. ये तो आना ही आना है एग्जाम में, like आना ही आना है. Okay, what is Bayes theorem? वैसे तो कुछ बच्चों को पता ही होगा जिन्होंने मैथ्स रखी थी. तो नहीं पता तो आई एम हियर विद यू गाइस, नो टेक टेंशन. Bayes theorem, it gives the probability. So if I'm writing something like this, probab, I'll say probab sometimes as well. So it means I'm talking about the probability. Okay, probab of an event based on prior knowledge of the conditions. हम ऐसी Bayes theorem ना उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालती है जिसकी कुछ प्रायर नॉलेज हो कुछ कंडीशंस की, और इसका फॉर्मूला है दिस: P of A slash B, that is probability of A slash B will be probability of B slash A into this dot signifies the multiply sign, P of A over P of B. So here देखो जी, जो यहाँ पे P of A slash B है, ठीक है, ये अपना एक हाइपोथेसिस है. Okay, this is some hypothesis, and this thing which is this, so this is representing probability of A is given that B, okay, not probability of A, yeah, probability of A, that's right, given that B has already occurred. Okay, so you are finding here the probability of A when the B has already occurred. Okay, so here ये जो है this is representing the likelihood. Okay, and this is representing the marginal. Okay, the margin. Okay, so where probability of A is prior, यहाँ पे जो probability of A है, this is the prior knowledge of the conditions. So here A is representing the prior knowledge of the conditions. So these are some formulas, okay, जो आपको पता होने चाहिए. Probability of A slash B is probability of A intersection B over probability of B. So this is probability of A when the B has already occurred. So this is the probability of B when A has already occurred. So इस probability को बोला जाता है conditional probability. And A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. और यही तुमने A intersection B की निकालनी हो तो सेम है probability of A plus probability of B minus probability of A union B, सेम. ओके, सो ये सेम ही है फॉर्मूला. उसके बाद जो भाई मैं तुम बता देती हूँ, इसमें से कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर देती हूँ तुम्हारे लिए. जो A है ना, यहाँ पे जो मैंने A लिया है अपने फॉर्मूला में, ठीक है जी, ये आपकी एक हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट कर रहा है. जो मैंने B लिया है क्वेश्चन में, ये गिवन डेटा होएगा आपका. उसके बाद जो A slash B लिया गया है यहाँ पे, so this is what finding the probability of hypothesis where the probability of training examples are given. I'll write it for you, wait. So I somewhat tried to write everything for you guys. So I have tried to explain all the terms here. So here I am just representing the A and B, where A is the hypothesis and B is the given data. You have to keep in mind. Okay, so probability of A slash B, what I have written here, I just explained all the 4 terms over here, 1, 2, 3 and 4. Okay, so probability of A slash B is a probability of the hypothesis where the probability of training examples are given. तो ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स एक एग्जाम्पल करके मैं तुम्हें समझाऊंगी भी कि मैंने क्या लिया है, कैसे किया है, एंड एवरीथिंग. So probability of A slash B is the probability of the hypothesis where the probability of the training examples are given, and probability of B slash A is the probability of the given data provided with the probability of the hypothesis that is true. It must be true. It must be true, guys. जैसे कि तुम्हें मैं कहता हूँ, इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हें.
ये चीज़ होनी चाहिए भाई। जैसे कि तुम्हें मैंने दिया है एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना, मैं उसमें से कहती हूँ कि ड्रॉ करो 10, इस डेक ऑफ 52 में 10 किंग हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, वो एग्जिस्टिंग जो भी हम निकाल रहे हैं वो पॉसिबल होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ कि पार्टी में 500 लोग आए थे, बताओ 1000 लोगों कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है 1000 लोगों ने खाना खाया। तो वो ऐसी बकवास बातें नहीं करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम जिस भी प्रोबेबिलिटी की जिस भी हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो हाइपोथेसिस इट शुड बी ट्रू। ठीक है जी, आगे probability of A, the probability of hypothesis before observing the given data, and the probability of B is the hypothesis of the given data. ठीक है जी, तो ये these are the terms. Now I'll try to explain an example for you guys. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. So I need to find probability of king / face. Please pause the video if you know the answer, solve it. If you don't, come with me. I'll solve for you. Probability of king / face. Now, here you know guys, the face cards. We know the face cards. How many face cards do we have? Okay, I'll write with the pen only. So how many face cards we have? We have 4 face cards. That is Jack, जिसको हम Knight भी बोलते हैं, KNIGHT, नाइट। एक होता है किंग और एक होती है क्वीन। ओके जी, ये अपने पास होते हैं, ठीक है। इसके भी 4 पत्ते होते हैं, इसके भी 4 पत्ते होते हैं, इसके भी 4 पत्ते होते हैं। मैं बिल्कुल ही गवारों की तरह बोल रही हूँ। इसके भी 4 कार्ड्स होते हैं, इसके भी 4 कार्ड्स होते हैं और इसके भी 4 कार्ड्स होते हैं। दिस इज व्हाट वी नो सो फार। ओके, सो फॉर एक डायमंड, स्पेड, और क्या होता है, हार्ट होता है, और एक क्लब। ये होता है डायमंड, स्पेड, आई थिंक दिस इज स्पेड, this is heart, and this is club, if I'm not wrong. ओके यार, ये स्पेड होता है, ये स्पेड होता है, इतना नहीं मुझे पता, मैं जुआरी नहीं हूँ। देखो, ये इसका एक जैक होता है, इसी का ही किंग होता है, इसी का ही क्वीन होता है। तो फेस कार्ड्स ये होते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी फालतू बकवास कर दी वीडियो में, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये अपन के पास फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने फेस कार्ड होते हैं? 4 × 3 12 फेस कार्ड है मेरे पास, ठीक है। और किंग कितने हैं मेरे पास? किंग मेरे पास है सिर्फ 4। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे इसकी, ये फाइंड आउट करनी है कि क्या है। तो मैं क्या लिखूँगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद है? मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला लिख के बताती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस / रुको मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A / B होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B / A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो मैं यही लिख रही हूँ। तो यहाँ पे किंग है, यहाँ पे फेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस / किंग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, ओके, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस, ठीक है। तो ये मैंने लिख दी। अब ये देखो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस / किंग कितनी आएगी? फेस / किंग आएगी 4 पत्ते, है ना। मतलब मुझे एक फेस कार्ड निकालना है। अब इसका मतलब समझो, मुझे ये इसका मतलब समझो, सिर्फ इतने का। मुझे एक फेस कार्ड निकालना है 4 किंग कार्ड में से। तो वो फेस कार्ड तो वो कोई भी अगर किंग में से ही निकालना है तो मेरे पास किंग के टोटल 4 ही पत्ते होते हैं और निकालना कितने? चारों में से, ठीक है जी। इन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, किंग आने की 4 ही पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी है ना। कितने पत्तों में से? 52 पत्तों में से। अब फेस आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? टोटल फेस कार्ड मेरे पास होते हैं 12, तो 12 पत्ते आने की 12 फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है 12 कितने में से? 52 कार्ड्स में से। ये समझ आया? ध्यान से सुनो, वीडियो आगे कर दो अगर तुम्हें समझ आ गया तो। फेस कार्ड निकालने हैं, टोटल फेस कार्ड होते हैं
किंग के, तो कितने हैं 4, कितने में से 4 में से निकालने हैं। किंग के निकालने हैं 4 जो कि है 52 में से। फेस कार्ड निकालने हैं जो कि होते हैं टोटल 12, कितने में से 52 में से। मुझे फेस कार्ड निकालना है किंग के, तो किंग के 4 ही होते हैं, तो कितने में से निकालने हैं, किंग में से निकालने हैं, तो यहाँ 4 आया है। ठीक है जी। अब फेस कार्ड अब निकालने किंग के पत्ते, तो किंग के पत्ते 4 होते हैं, टोटल है 52, तो 52। अब फेस कार्ड निकालना है, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, तो 12/52 ऐसे। अब ये तो कट गए भाई, ये तो आ गया 1, इसको काटोगे तो ये आ गया 1/13। अब यहाँ पे इसको काटोगे तो आ गया 3/13। इसको अब तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/13/3/13 आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, 13 से 13 कट गया तो 1/3 आ गया। सो 1/3 इज योर आंसर। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग स्लैश फेस is nothing but 1/3. So this is your answer guys. This is how you find the questions के answer by Bayes theorem. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे थोड़े इससे भी हायर लेवल के क्वेश्चंस कराने चाहिए तो let me know. I'll make the video for the same. Thank you for watching and have a nice day.